اور ابھی آپ کو بتائیں کہ FIA نے آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث ملزم کو راولپنڈی سے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے خود کو شہری کا رشتہ دار ظاہر کر کے لاکھوں روپے بٹورے۔ اپڈیٹ کریں FIA سائبر کرائم سرکل کی کارروائی۔ آن لائن فراڈ میں ملوث راولپنڈی سے گرفتار ملزم نے خود کو شہری کا رشتہ دار ظاہر کر کے لاکھوں روپے بٹورے۔ مزید جانیں گے خرم ہاشمی سے۔ جی خرم ہاشمی، آگاہ کیجیے گا۔ جی FIA سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کی یہ کارروائی ہے۔ آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی میں جو ہے وہ ملوث ملزم اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم محمد امین کو چھاپہ مار کارروائی میں راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA کا کہنا ہے کہ ملزم نے خود کو شہری کا رشتہ دار ظاہر کر کے لاکھوں روپے بٹورے ہیں۔ ملزم نے خود کو شہری کا جعلی رشتہ دار ظاہر کر کے رابطہ کیا اور حادثاتی طور پر بتایا کہ 2,50,000 روپے اس سے ہتھیائے ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم روزانہ کی بنیاد پر سادہ لو شہریوں کے ذریعے جو ہے میسیجز کے ذریعے ان کو جال میں پھنسا کے جو ہے ان سے دھوکہ دہی کے ذریعے پیسے ان سے جو ہے وہ حاصل کرتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے موبائل فون و دیگر شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے مزید تفتیش کی جاری ہے۔ جی کر رہے تھے نمائندہ اب تک خرم ہاشمی۔ سوابی میں PTI ورکرز کنونشن شیر افضل مروت سمیت PTI کے 21 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR تھانہ سوابی کے SHO کی مدعیت میں درج کی گئی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں سابق MPA عاقب اللہ، سابق MPA عبدالکریم تحصیل میئر عطا اللہ فیصل ترکئی، ضلع صدر سہیل یوسفزئی عدنان اور دیگر قائدین بھی نامزد ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ مسلم نون کے عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز آج نصیر آباد آفس میں ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق کی سربراہی میں بورڈ انٹرویو کرے گا۔ اب ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ FIR تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ سوابی میں PTI ورکرز کنونشن شیر افضل مروت سمیت PTI کے 21 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ FIR تھانہ سوابی کے SHO کی مدعیت میں درج کی گئی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مقدمے میں سابق MPA عاقب اللہ، سابق MPA عبدالکریم تحصیل میئر عطا اللہ فیصل ترکئی، ضلع صدر سہیل یوسفزئی عدنان اور دیگر قائدین بھی شامل ہیں۔ مزید جانیں گے نمائندہ اب تک مصطفیٰ کمال سے۔ جی مصطفیٰ، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، سوابی میں کل ہونے والے ورکر کنونشن سے جو کہ شیر افضل مروت سمیت PTI کے 21 مقامی قائدین اور دیگر نامعلوم کارکنان کے خلاف پولیس کی طرف سے FIR درج کر دی گئی ہے۔ FIR درج جو تانہ ہے وہ سوابی کے SHO کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے گزشتہ روز منعقد ورکر کنونشن میں تحریک انصاف کے عہدیدار اور کارکنانوں نے شرکت کی تھی۔ مقدمے میں سابق MPA عاقب اللہ جو کہ اسد کیسر جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اس کا بھائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ MPA عبدالکریم خان اور تحصیل میر عطا اللہ اور شہرام کے بھائی فیصل ترکئی یہ شامل ہے۔ جی آگاہ کر رہے تھے نمائندہ اب تک مصطفیٰ کمال۔ اور ابھی آپ بتائیں کہ مردان میں PTI ورکرز کنونشن کے موقع پر ڈبل سواری کے اور کالے شیشوں اور دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ مردان میں PTI ورکرز کنونشن کے موقع پر ڈبل سواری، کالے شیشوں اور دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ مرکزی سینئر نائب صدر شیر افضل مروت، 104 رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درج کیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ مردان میں PTI ورکرز کنونشن میں ڈبل سواری، کالے شیشوں اور دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ مقدمے میں مرکزی سینئر نائب صدر شیر افضل مروت اور 104 رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں صوبائی نائب صدر ظاہر شاہ تورو اور متعدد سابق اراکین اسمبلی بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ کیس SHO تھانہ جبر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں پولیو مہم میں رکاوٹ ڈالنے اور روٹ بندش کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ مردان میں PTI ورکرز کنونشن کے موقع پر ڈبل سواری، کالے شیشوں اور دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ مرکزی سینئر نائب صدر شیر افضل مروت، 104 رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔
और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू आज नसीराबाद ऑफिस में होंगे। ख्वाजा साद रफी की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। अपडेट करे हैं आपको इस हवाले से। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू नसीराबाद ऑफिस में होंगे। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू आज नसीराबाद ऑफिस में होंगे। ख्वाजा साद रफी की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। ख्वाजा साद रफी की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू नसीराबाद ऑफिस में होंगे। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं और तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज नसीराबाद ऑफिस में होंगे। ख्वाजा साद रफी की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तें तैयार भी कर ली गई हैं और उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज नसीराबाद ऑफिस में होंगे। ख्वाजा साद रफी की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार है। इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। अवाम की परेशानी के बारे में मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा अब तक कामरान चौधरी। जी देखिए, मुल्क में महंगाई का राज बरकरार है। एक जानब अदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 41.05% की सतह पर मौजूद है, तो दूसरी जानब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी कुछ ऐसा ही बता रही हैं कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त बरकरार है। इस्लामाबाद की अगर बात कीजिए तो इस्लामाबाद के हर इतवार में जो है वो यहाँ पे सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं और इन सस्ते बाज़ारों में लोग जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद के बासी ख़रीदारी के लिए आते हैं, हफ्ते भर की ख़रीदारी करते हैं, ख़ास करके सब्ज़ियों और फलों की। और सब्ज़ियों और फलों की अगर बात की जाए आज की, तो सस्ते बाज़ारों में सब्ज़ियाँ और फल जो हैं वो गुज़िश्ता इतवार से जो है वो महंगे हैं। और महंगाई का ये आलम है कि प्याज जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पे दस्तयाब थे, अब जो है वो 166 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पे दस्तयाब है। 5 किलो प्याज की कीमत 830 रुपये तक जो है वो पहुँच चुकी है यहाँ पे सस्ते बाज़ारों में। इसी तरह से आलू की बात की जाए तो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में 2 हफ्ते कबल दस्तयाब था, आज 110 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पे दस्तयाब है। तो आलू की कीमत भी जो है वो बढ़ चुकी है और 5 किलो आलू जो है वो 550 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह से अगर अदरक की बात की जाए तो 440 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पे अदरक दस्तयाब है। लहसुन 448 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। सब्जियां तमाम जो हैं वो 170 रुपये से लेकर 250 रुपये तक यहाँ पे दस्तयाब हैं। फलों की अगर बात की जाए तो तमाम फल जो हैं वो भी महंगे दस्तयाब हैं और शहरी जो हैं वो परेशान हैं। 300 रुपये फ़ी किलो से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पे तमाम जो फल हैं वो दस्तयाब हैं। और शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत इक़दामात करे, ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ जिससे जो है वो रिलीफ आम आदमी सस्ते बाज़ारों में जो कि शहरियों की सहूलत के लिए लगाए गए हैं। तो एक जानब महंगाई की शरह 41%, दूसरी जानब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी यही बता रहे हैं कि अब हर चीज़ जो है वो महंगी है और शहरी परेशान है। जी, सरगोदा के इतवार बाजारों में सब्जियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। प्याज और लहसुन मनमानी कीमत पर फरोख्त होने से शहरी मायूसी का शिकार हैं। कीमतों की मज़ीद सूरत हाल के बारे में बात करते हैं नुमाइंदा अब तक अनीस अकरम से। जी अनीस, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद आज ख़रीदारी में मसरूफ़ है सब्ज़ी मंडी में। और अगर हम कीमतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगा इस वक्त सब्ज़ी में प्याज है जो 200 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर चुका है और ये रेट मंडी का है, जबकि दीगर मार्केट्स में यही प्याज इससे कई गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ जो थोम है, लहसुन है, उसकी कीमतें भी खासी महंगी हैं और 700 रुपये फ़ी किलो है, जबकि दीगर सब्जियां भी जो सर्दियों की हैं, ख़ास तौर पर टमाटर, गाजर और जो मटर, ये तमाम सब्जियों की कीमतें उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकी जिसमें आम तौर पर इस मौसम के अंदर ये पहुंच जाती हैं। चूँकि इस वक्त बारिशें ना होने की वजह से इसकी पैदावार में कमी आई है, जिसकी वजह से मटर भी इस वक्त सर्दी के मौसम में 250 रुपये फ़ी किलो इस सब्ज़ी मंडी में फ़रोख्त हो रहा है। और इसके अलावा जो दीगर सब्जियां हैं वो भी इसी कदर महंगी हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होती नज़र आ रही हैं। और अगर हम रेट लिस्ट की बात करें तो रेट लिस्ट के अंदर बदस्तूर तमाम चीज़ें इंतहाई सस्ती, इंतहाई अर्जा कीमत पर दस्तयाब हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रेट लिस्ट की हद तक ही हैं, मार्केट से उसका कोई भी बाहमी रब्त या ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में खुसूसी अफराद के हवाले से मुनक्किदा की गई तकरीब में शिरकत की है। उनका कहना है कि हम खुसूसी अफराद को मुआशरे का कामयाब फर्द बना सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब तक लियाकत मुग़ल से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा, मज़ीद क्या कहना था कामरान टिसोरी का? देखिए जी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खुसूसी अफराद के हवाले से मुनक्किदा
तकरीब में शिरकत की है। गवर्नर सिंध जिस्मानी कमजोरी का शिकार बच्चों को में घुल मिल गए, साल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर खुसूसी बच्चों को माशरे का कामयाब फर्द बना सकते हैं। जी आगाह कर रहे थे नुमाइंदा अब तक लियाकत मुगल। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से SOS चिल्ड्रन विलेज के बच्चों ने मुलाकात की है। बच्चे गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया के साथ घुल मिल गए। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से SOS चिल्ड्रन विलेज के बच्चों ने मुलाकात की। बच्चे गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया के साथ घुल मिल गए। अहम खबर से आपको इस बात आगाह कर रहे हैं। बलीगुर रहमान और उनकी अहलिया बच्चों से मुलाकात। हम आपको गवर्नर हाउस में खुशामदीद कहते हैं, ऐसा कहना था बलीगुर रहमान का। लाहौर में गवर्नर हाउस पंजाब में SOS चिल्ड्रन विलेज के बच्चों की आमद पर गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर बलीगुर रहमान ने खुशामदीद कहा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस बारे से। बच्चे गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया के साथ घुल मिल गए। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 2600 अफगान शहरी वापस चले गए। डेडलाइन खत्म होने के बाद अब तक 4,04,900 अफराद वापस जा चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के सखावती दिन पर मुल्क भर के अवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि सिंधी की सखावत दुनिया की कदीम तरीन तहजीब की बेहतरीन अक्कास है। सिंध की सखावत का मरकज मोहनजोदाड़ो है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद लिखा कि सिंध के अवाम तारीखी तौर पर पुरअमन और वतन दोस्त हैं। अहलियान सिंध फितरत और फल से लगाव रखते हैं। सिंध के यौम सखावत की मुनासबत से हैदराबाद के निजी स्कूल में रंगारंग सखावती तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा तालिबात ने सिंध के लोकगीतों पर खूब रक्स किया। मज़ीद अहवाल हफीज मक्सी की रिपोर्ट में। सिंध की सदियों पुरानी कदीम और खूबसूरत सकाफत के मुतालिक आइंदा नस्ल तक आगाही के लिए हैदराबाद के निजी स्कूल में रंगारंग सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया और हर जानिब सकाफती रंगों की बहार सी नजर आई। सिंध धरती की जो नई नस्ल है उसको अपनी रूट्स के पास ले आने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये हमारी सकाफती ईद है। हमारी जो सिंध की सकाफत है वो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि हमारी सकाफत कितनी खूबसूरत और कितनी रंगीन है। रंगारंग सकाफती तकरीब में तुलबा और तालबात ने सिंधी अजरक से तैयार करदा खुसूसी लिबास ज़ेब तन किए, लोक गीतों पर खूब रक्स किया और टेबलोज भी पेश किए और शुरा से खूब दाद भी वसूल की। बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को भी पता चले कि सिंध का देहाती कल्चर और शहरी कल्चर क्या क्या था। जैसे कुआं था, जैसे चक्की थी। हर सूबे में रहने वाले बच्चे और जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपनी सूबा और अपने मुल्क के साथ अपनी एक उनसियत शो करें। तो आज का प्रोग्राम भी उसी हवाले से है। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि कल्चर डे इवेंट का इनेकाद न सिर्फ सिंध की हजारों साल कदीम सकाफत को उजागर करने का सबब है बल्कि भरपूर मोहब्बत के फरोग का भी जरिया है। कैमरामैन जुल्फकार जिसकानी के साथ हफीज मक्सी, हैदराबाद अब तक। सिंध की खूबसूरत सखावत को मनाने के लिए सक्कर में सखावती तकरीबात का सिलसिला जारी है। फेरी होम की जानिब से रंगारंग सखावती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फेरी से टैबलोस और सखावती गीतों पर रक्स करके सिंध की खूबसूरत सखावत से मोहब्बत का इजहार किया। इस हवाले से सक्कर से देखिए अशरफ आबरू की रिपोर्ट। सिंध की हजारों साल पुरानी सकाफत को मनाने के लिए फेरी होम की जानिब से सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में नन्ही परियों ने मुख्तलिफ किस्म के टेबलों और सिंधी गीतों पर रक्स करके सिंध की खूबसूरत सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। हम सिंध की सकाफत को बहुत इंजॉय करते हैं। हम टेबलोस पेश करते हैं, ड्रामास पेश करते हैं और बहुत स्पीचेस वगैरह भी करते हैं। उस मौके पर DIG अब्दुल हमीद खोसो, असिस्टेंट कमिश्नर सोबिया फलक राव और दीगर का कहना था कि सिंध की सकाफत बहुत खूबसूरत है। सिंधी अजरक टोपी, सिंध के लोग और सिंध के लोगों के बोलने की मिठास, ये कल्चर है दुनिया भर में प्रमोट करना चाहिए। एक अच्छी अरेंजमेंट की और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बच्चियों ने अपने जो है ख्यालात का इजहार किया। सिंधी सकाफत बहुत खूबसूरत है और जैसे कि सिंधी अजरक, सिंधी टोपी और सिंध के लोग, सिंध के लोगों की बोलने की मिठास। बच्चे आज कल्चरल डे सेलिब्रेट करके ये अमन और भाईपी और का पैगाम देना चाह रहे थे। कि तकरीब के दौरान शुरा का कहना था कि सूफियों की इस धरती ने हमेशा प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है। हजारों साल पुरानी सकाफत और तहजीब को उजागर करने के लिए ऐसी तकरीबात का होना खुशाइंद अमल है। कैमरामैन गुलाम शबीर के साथ अशरफ अबड़ू, सक्खर। नोकोट सिंधी कल्चर डे के बाद से स्कूलों में तकरीबात का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल स्टेडियम में सखावती मेले का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात साइंसी और सखावती स्टॉल्स लगाए गए। शकील मुजाहिद की रिपोर्ट देखिए।
सिंध भर की तरह सिंधी कल्चर डे को जोश व जज्बे से मनाने के लिए नौकोट समेत तहसील कलोई के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में सकाफती तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नौकोट के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल सेडियो में सकाफती तालीमी मेले का इनेकाद किया गया, जहां पर तुलबा व तालबात ने अपने अपने साइंसी मॉडल्स और आइडियाज के स्टॉल लगाए और तुलबा और तालबात ने माहौलियात समेत दस्तकारी के हवाले से मौसर अंदाज में आगाही दी। ये सब डिज़ाइनी डाली हैं और ये चोला हैं सब हमने बनाए हैं। प्रोजेक्ट से ये लोगों को उजागर करना चाहते हैं कि वो गंद कचरा न करें और पौधा और जो हमारे माहौल को साफ है। स्कूल के इस सकाफती मेले में साइंसी मॉडल्स के साथ साथ सिंध की कदीम सकाफत रली लोई अजरक के स्टॉल लगाकर सकाफत की रूनुमाई की, जिस पर उस्ताजा और मेले में शरीक अफराद ने तुलबा की खूब हौसला अफजाई भी की। कल्चर का एक स्टॉल लगाया जिसमें कल्चरल चीज़ें रखी हुई हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पुरानी जो कल्चर की चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं है उससे वाकिफ़ हों। उसके बाद हमने आईटी का एक स्टॉल लगाया है कि ये दौर जदीद है, इसमें आईटी कंप्यूटर की अहमियत है, ऑनलाइन कारोबार की अहमियत है। हमने आईटी का स्टॉल लगाया हुआ है और बच्चों को आगाही बच्चे ही दे रहे हैं। सिंधी कल्चर डे के हवाले से जारी तकरीबात में तुलबा सिंधी गीतों पर रक्स करके सिंध की 5 साला तारीख पर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे। शकील अहमद मुजाहिद, नौकोट। अब तक कोट डीजी के अवाम सिंधी सखावत के दिन को भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। कोट डीजी किला में अवाम की बड़ी तादाद सिंधी टोपी और अजरक पहनकर शरीक है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोट डीजी में भी आज सकाफती दिन बड़े जोश व खरोश से जो है मनाया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं सकाफती जो विरसा है कोट डीजी किलो पर, जहां पर रैलियों के सूरत में छोटे बड़े और बच्चे जो है यहाँ पर ज़ेब तन अजरक और टोपी करके पहुँचे। हमारे साथ जो है शहरी भी मौजूद है, यहाँ पर जो घूमने आए हैं, जो सकाफत का दिन मना रहे हैं, वो मौजूद है। नौजवान आइए इनसे बात करते हैं। जी, ये देखें कि हमारी सकाफत जो है 5000 साल पहले की हुई है और ये दिन हम बड़े बच्चे बूढ़े शहर गाँव गली गोंचों में ये हम ईद की तरह मनाते हैं। और हमारे ये जो सकाफत है ये 5000 साल पुरानी और सबसे ज़्यादा कदीमी और हमको मोहब्बत अपनी सिंध से है और उसके बाद पाकिस्तान से। जिए सिंध। जी बिल्कुल, आपने इन लोगों की बातें सुनी कि आज का दिन जो हम वो ईद से बढ़कर जो है मना रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि जो है ना हम अजरक टोपी पहनकर गाँव गलियों और जो है ना हर शहर में जो है ना रैलियाँ निकाल कर आज सकाफती दिन मना रहे हैं, क्योंकि ये ना सकाफती सिंध की जो सकाफत है वो 5000 साल पुरानी है। जी टंडोवाला यार प्रेस क्लब पर सिंधी सखावत के दिन की मरकजी तकरीब का इनेकाद हुआ। अवाम की बड़ी तादाद ने सहावती लिबास सेफ तन करके भरपूर शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रशीद जाफरी वहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी रशीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज टंडोलियार में भी सिंधी सकाफत का दिन निहायत ही जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। सुबह से ही टंडोलियार प्रेस क्लब पर जो है रैलियों का आमद का सिलसिला जारी है और छोटे बड़े बच्चे बूढ़े तमाम लोग इस दिन को शायान शान तरीके से मना रहे हैं। कहीं रक्स किया जा रहा है तो कहीं लोग गीतों पर जो है लोग झुमरियाँ डाल रहे हैं। इसके अलावा टंडोलियार प्रेस क्लब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया है, जहाँ पर आने वाले मेहमानों को रैलियों को खुशामदीद कहा जा रहा है। टंडोलियार में चारों तरफ जो है सकाफत के रंग ही रंग बिखरे हुए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज उनके क्या ख्यालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी का मौका है कि सिंध की कदीम सकाफत जो सदियों से यहाँ है राइज और उसमें रहने वाले जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं सिंध के, वो इस मुकद्दस दिन को अपना मुकद्दस दिन समझकर ईद का दिन समझकर बड़ी शानदार तरीके से बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं ईद की तरह। जी बिल्कुल, आज टंडोलियार में चारों तरफ सकाफत के रंग नजर आ रहे हैं, चारों तरफ जो है जश्न का समा है और लोग भरपूर तरीके से आज के इस दिन को ईद की तरह मना रहे हैं। जी समंदर पार मुकीम सिंधियों ने भी सिंधी सखावत का दिन जोश व खरोश से मनाया। तफसीलात इससे पूछना है। यूरोपीय मुल्क इटली में सिंध की सकाफत के रंग निखर गए। फ्लोरेंस शहर में तकरीब के दौरान सिंधी गीतों पर रक्स। इटली की जामियात में पढ़ने वाले हामिद अली, आसिम महर, तलत सेठार, बिलाल कुरैशी और दीगर तुलबा व तालबात ने टोपी अजरक समेत सकाफती लिबास पहनकर सकाफती दिन का जश्न मनाया। सऊदी अरेबिया में सिंधी सकाफत की रंगों की बहार। जद्दा में तकरीब के दौरान सकाफती लिबास पहने सिंधियों ने सिंधी गीतों पर रक्स किया। उस मौके पर सिंध समेत पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि